A very good morning, everyone. Today we are here to have a bonus pack of Class 9 Science question bank. But these questions are very important according to any exam point of view. So as you prepare well, I had brought these questions. You need to assess yourself according to your marks, according to the number of questions you answer very fairly. Let us start up with this section A. Question number 1 says, what are cathode rays? So this question we already know. This is of chapter number 4, Structure of Atom of Chemistry. So the answer can be that these are the rays that do originate from the cathode. And what is cathode? Cathode is the positively charged one. Okay, positively charged one. Right. Further, the next question, it was of 1 mark, so this much answer was sufficient according to me. Then when a tree is shaken, apple falls down. Explain. So it's of your chapter number 2, force and laws of motion. क्वेश्चन में हमको आंसर सिंपल लिखना है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ट्री है उसमें अर्लियर जो एप्पल्स थे हमारे पास, जो पहले एप्पल्स थे वो कहाँ पे थे, कौन से कंडीशन में थे? दे वर रेस्ट इनिशियली. तो जब हमने उसको हिलाया तो वो रेस्ट से मोशन में आए. तो कोई भी बॉडी है वो अपनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन रेजिस्ट करेगा इन स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट. तो मतलब क्या है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से. राइट. क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर का हिंट मिल जाना चाहिए. Next question. Question number 3, which says, what's a pure substances? And we need to write the characteristic of them. It's a 2-marker question, so we can answer it very nicely. That these are the substances which have a fixed composition. The ones which have a fixed composition, as well as they have, now we need to write characteristic, so we can write 2 characteristics. They have a fixed composition, they cannot be separated by physical means, it's not possible. We can use some of the electrochemical means to separate. And the third point which we can write as a characteristic is that they may or may not show the properties of their constituents, right? Because the compounds they do not show, while the elements they do show. So may or may not show the characteristics of their constituents. Now constituents क्या होते हैं? You know, I think constituents are those substances which make up any of the substance. Fourth question, which says that state the Archimedes principle, and we need to give its 2 applications. Very simple. I think you can answer the first part of the question. Let's answer that. So this principle given by Archimedes, it says that whenever an object is either fully immersed in any fluid, no matter partially or fully, whenever it is immersed in any fluid, be it liquid, be it gas as well, the buoyancy force will act, and that buoyancy force, it would be equal to the weight of the fluid being displaced by the object. Very simple. We can apply it many
at many places, right? We can give the example of two places. Like first of all, we applied whenever we do make the ships, whenever the ships and the submarines they are designed, right? Ships and submarines को design करने के लिए it is helpful कि जैसे हमारे पास जो शिप होती है या सबमरीन होती है उसका डिजाइनिंग ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो फ्लोट करता रहे, तो दैट उसका आइडिया कैसे लगता है कि वो कहाँ पे किस टाइप की बॉडी में जाने वाली है और बुयंसी फोर्स पे, राइट? तो वही यहाँ पे हमारे पास शिप्स और सबमरीन्स के डिजाइन करने में ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प करेगा. सेकेंडली इट विल हेल्प इन मिल्क की जो प्योरिटी हम डिटरमाइन करते हैं. मिल्क की प्योरिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज लेक्टोमीटर. और जो ये लेक्टोमीटर है, this particular instrument, it is based on one principle that is known as Archimedes principle. I hope it's very clear to everyone. Let's move further. Next question, draw a well-labeled diagram of a basic unit of nervous tissue. देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायग्राम, मतलब लिखना नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बनाने का ड्रॉ बोला है. अगर यहाँ पे बोलता कि write the structure of a nervous tissue, a basic unit of nervous tissue, then you would have written about it, but here we need to draw. यहाँ पे basic unit of nervous tissue बोला है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए वो क्या होता है. So it is simply a neuron or a nerve cell, we can call it, right? So let's draw that here. Starting up with the cytone. I am drawing the cytone here, which will make it easy for me to extend it. Now यहाँ पे ये extend होता है, इसको थोड़ा सा long wavy structure बनाना है, which would give it a better look. Okay, then we'll extend it to the synaptic nerves. They need to be fine enough, not much thicker, neither too smaller, just perfect size. Okay, so this is the perfect size which I have also made. I think it had been a bit thicker. Just try to make it on a notebook. I think it will work. Okay, further, we can extend the cytone into some openings, which are the dendrites. These also make them a bit thinner. Okay, in the center, you'll make one dark spot and you'll name it. What do we call it? Yeah, we call it nucleus. Now let's label the parts, but before that, one thing we are missing, that is the myelin sheath. And who make this myelin sheath? That also we need to draw. They are none other than our squamous cells. Let's make them as well. So I'm making up the squamous cells. They're not getting drawn, the one that I wanted. But I think you can adjust. Remember the clear-cut idea for this structure. This, I think, you can draw. Let's label it. The first part that we drew, that was the cytone, the cell body, the soma, that whatever you name it. Further extensions were the dendrites, the smaller extensions. The bigger extension of it was the axon. The bigger parts I'm labeling first of all. Now moving on to the minorities. This one. It is a nucleus
and as we know, it has a cytoplasm known as neuroplasm. Okay, further it has some of the granules present here known as our very own Nesser's granules, and I know very well you know them. They are the irregular masses of uh, ribosomes and free endoplasmic reticulum. Then we made the squamous cells. Let's label them. Then we made up the myelin sheath. Right? Then we were having these small spaces known as nodes of Ranvier. Further, we have here the synaptic knobs, which release synapse. And this last point which I'm labeling, these are the axon terminals. Axon terminal or nerve endings also we call them. You can fit this picture in your mind. It was all about this diagram. Moving on to the choice in this particular part, it is that what are biofertilizers and enlist the major group activities performed for improving the crop yields. It is of your chapter, the improvement in food resources. So biofertilizers are those fertilizers which are made from living things. Like तुम्हारे पास manure होता है वो humus से बनता है, humus और सॉरी ह्यूमस से नहीं बनता, वो डंग से बनता है, राइट, काउ डंग वगैरह. तो manure is a biofertilizer. Then enlist the major group activities for improving crop की yield को कैसे improve कर सकते हैं. इसलिए फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम अपने फील्ड में ज्यादातर ग्रो करें, या फिर हम कर सकते हैं कि जो एक्सेसिव इरिगेशन है उसको रिड्यूस करें. फर्दर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं उनको हम अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो उनको, एज वेल एज जो पेस्टिसाइड्स हैं एज वेल एज फर्टिलाइजर्स है उनकी हेल्प से हम उनको प्रोटेक्टेड रखें. दैट्स ऑल. These 3 points which I spoke at last, these you can include in your answer. And biofertilizers की definition में कि हमारे पास वो organisms जो कि soil में nutrients add up करेंगे वही biofertilizers की तरह काम करेंगे, right? इसमें example अगर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, rhizobium, anabaena, nostoc, all these. Now we are done with the section A and moving on, section A and B, moving on to the section number C. So here the questions will be 3 markers each, so be careful. Now starting off with the 6th question, it says that 2 objects are there. Let's make the diagram according to that. So we have 2 objects and each of their mass is given as 1.5 kg. This one also 1.5 kg. Further the question says that they're moving in the same straight line, means either they're moving like this or like this, right? So means I want to say they're moving in the same straight line. Now these objects, they're moving in opposite direction like this. तभी और यहाँ पे लिख रखा है ऐसे, इधर यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे या फिर ऐसे भी मूव कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, है ना. यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से ईच की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड. Okay. Further the question says before the collision. Now collision हो रहा है मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है
एक ऐसे जा रहा है तो कोलिजन होगा? नो, नॉट एट ऑल। अगर ये एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तभी तो कोलिजन होगा। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला केस था, दैट इज अप्लाइड हियर, दैट इज वैलिड हियर। ये था सिनेरियो बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन। अभी आफ्टर कोलिजन क्या होता है? दे स्टिक टुगेदर। अभी स्टिक टुगेदर हो रहे हैं तो 1.5 प्लस 1.5 उनका मास हो जाएगा टोटल, गिविंग अस 3 kg। 3 kg इन टोटल उनका मास हो गया। अभी उनकी कंबाइन ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन, ये हमको स्पेसिफाई करना है। So let's see combined velocity कैसे निकालेंगे? Simple, by the formula of conservation of linear momentum, chapter number 2, fortune laws of motion, right? तो ये 3 mark का question है, we can write accordingly. तो m1u1 plus m2u2 giving us m1v1, m1 plus m2 कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी हम v मान लेते हैं क्योंकि ये स्टिक हो चुके हैं, है ना? m1u1 क्या लिखेंगे? 1.5 into 2.5 plus m2 1.5 into, देखो यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो अगर हम ये वाली डायरेक्शन राइट वाली पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वाली नेगेटिव, ये वाली वेलोसिटी नेगेटिव, ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसीलिए -2.5 यहाँ पे आ गया। कोलिजन के बाद 3 kg इन टोटल मास इंटू v। देखो यहाँ पे ये 1.5 into 2.5, 5 is 25 and it would become 3.7। ये भी वही है, तो पॉइंट माइनस हम कर देंगे, 3.75 माइनस का साइन था, प्लस इंटू माइनस, माइनस इज इक्वल टू 3v। यहाँ पे 0 है, 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0, है ना? तो मतलब आफ्टर कोलिजन वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पे आ जाएंगे। ओके, this was the solution for this question. Moving on to the 7th question, write all the 3 Kepler's laws which govern the motion of the planets. तो देखो यहाँ पे हमारे पास चॉइस भी है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 10 न्यूटन्स का है। जब अर्थ के सरफेस पे मेजर करते हैं तो इसका वेट मून के सरफेस पे क्या होगा? एंड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इट जस्टिफाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the moon is 1/6 of its weight on the, you can attempt any of these. I'm attempting the first part of the question. 3 Kepler's law हमको पता है, उनमें से जो पहली लॉ है, फर्स्ट लॉ, दिस लॉ सेज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉरी प्लैनेट है, जब ये हमारे पास सन है, लेट मी जस्ट राइट अगेन, कोई भी हमारे पास प्लैनेट है वो किसी एलिप्टिकल पाथ में ही सन के अराउंड मूव करेंगे। एलिप्टिकल पाथ को हम हिंदी में बोलते हैं अंडाकार। ओके, ठीक है, ये एलिप्टिकल है। ये जो सन होता है हमारा जिसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, which it will be placed at one of the foci। ये तो हमारे पास दो हैं, which I'm drawing with yellow, तो ये दोनों foci हैं। Definition, I can tell that the planets, they move around the sun in an elliptical orbit, elliptical path, and the sun is placed at one of the foci। इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस में, छोटी वाली माइनर एक्सिस, बड़ी वाली मेजर एक्सिस। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, इट सेज that these planets, their aerial velocity is constant। aerial velocity क्या है? area covered upon time। ओके, तो मतलब एक मतलब कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड एरिया ही वो करेंगे। इतने इंटरवल, इतना जो एरिया है इसको कवर करने में जितना वो टाइम टी1 लगाएंगे, उतना ही टाइम वो किसी और इतने ही पर्टिकुलर एरिया को कवर करने में लगाएंगे। their aerial velocity is always constant। चाहे ये रीजन हम ऐसा ले लें, यहाँ पे भी टाइम t1 ही लगेगा अगर ये एरिया सेम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये टाइम सेम लग रहा है दोनों में तो एरिया सेम होगा, है ना?
और यहाँ से हम एक और पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं कि देखो, जब हमारे पास सन के क्लोजर होता है, सन के जब प्लैनेट क्लोजर होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इज हायर, और जब दूर जाता है फार्दर होता है तो वो कम होती जाती है. The third law is simplest in all, that t square directly proportional to RQ. अभी ये symbols क्या है भाई? T square stand for the time period जो कि लग रहा है उस planet को, and R stands for the semi-major axis. तो यहाँ पे ये जो है, हाँ, ये this is one of the part of the semi-major axis. So these were the three laws given by Kepler. अभी और वाला पार्ट भी कर लेते हैं. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of Earth. What would be the weight when measured on the face of the moon? Very simple question. अगर हमारे पास weight on Earth है 10 न्यूटन्स, है ना, 10 न्यूटन्स हमारे पास अर्थ पे वेट है, तो यहाँ पे मून पे कितना होगा? 1/6, क्योंकि वहां पे जो जी है, देखो मास के जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है किसी भी प्लैनेट पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा? m इंटू जी ऑन अर्थ, है ना. वेट ऑन मून कितना होगा? m इंटू 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, है ना. और इसकी वैल्यू, हमारे पास वेट ऑन अर्थ की वैल्यू है 10 न्यूटन्स. ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/6 इंटू मास को, और ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू क्या है? वेट है, और दैट इज 10. तो 1/6 इंटू 10, 2 3 तो 5 तो 5/3 न्यूटन्स will be the answer for this particular question of ours. B part देखते हैं. Justify that the weight of an object on the moon is 1/6 the weight on Earth. तो हम क्या करेंगे? Gravity on Earth है upon the gravity on moon है, उसको हम निकालेंगे कैसे? Gm upon r square, ये है अर्थ के, सॉरी, Gm mass of Earth upon radius of Earth का स्क्वायर divided by, ये हम डिवाइड करेंगे with the g mass of moon upon radius of moon का square, g से g cancel, and it would become mass of earth upon the radius of earth का square into radius of moon का square upon mass of moon का square. Just put down the values here and you'll be getting the answer as 1/6. कुछ काम तो you must also do, right? तो ये 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 6/1 इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने ग्रेविटी ऑन अर्थ को ऊपर लिया है, तो 6/1 will be the answer. 6:1. Eighth question. What is sonar and how does it work? It is a question from your sound chapter. तो जो sonar है, it is one instrument. It is a device जो कि reflection of sound पे based होता है. Reflection of sound पे based होता है हमारा sonar. इसकी full form you can know, sound navigation and ranging. ये जो device है ये हमारे पास sea में यूज किया जाता है most of all, कि जो sea की depth है ना, depth, उस डेप्थ को देखने के लिए. क्यों, कैसे, मतलब कि जो हमारे पास ये कुछ रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये क्या करेगा? एमिट करेगा, और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी. तो वो जो रिफ्लेक्शन बैक में जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम, देखो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2d/t, राइट, v इक्वल टू 2d/t. तो यहाँ पे हमको अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, इसमें वाटर में टाइम हमको पता होगा कि कितने टाइम में वो आया है, वो नोटिस करेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, दैट वुड बी vt/2. ओके, यहाँ पे 2 क्यों किया? कि जाने का भी डिस्टेंस हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, आने का भी देख रहे हैं, राइट. तो वो होगा वर्किंग ऑफ सोनार.
ये दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, वो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बट यू कैन राइट इन योर आंसर दैट इज ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करेगा, और एक पार्ट होता है रिसीवर। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कि व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जब रीच कर जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जैसे हमको 10 डिग्री सेल्सियस पे -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो मेल्ट करवाना है, फ्यूजन अंडरगो करवाना है, ठीक है, इनटू टू 10 डिग्री सेल्सियस वाटर, टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर मास वास हम नहीं ले रहे, स्पेसिफिक नथिंग लाइक दैट, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है सिंपल। यहाँ पे देखो जो हमारे पास -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट लगेगा दैट वुड बी नन अदर देन दैट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट लगेगा वो हमारे आंसर में वैसे इंक्लूड नहीं होना, बट आई एम टेलिंग फॉर योर नॉलेज। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास फेज चेंज होता है। कौन करवाता है वो फेज चेंज? एक हिडन हीट करवाती है, एक हिडन हीट करवाती है, एंड दैट पर्टिकुलर हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। You would have studied in chemistry, I think so. तो ये जो latent heat है ये phase change करवाएगी without changing the temperature of that particular substance. Okay, temperature change नहीं करेगी, phase change करेगी, और जब change हो जाएगा then 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का रास्ता हमारा कवर करेगा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, this was all. Question number 10. Differentiate between two solution colloid and suspension on the basis of the following properties. First, size of particles देखना है, तो देखो जो हमारे पास two solution होते हैं, colloid होते हैं और suspension होते हैं. Let's write the size of the particles. So true solution में they are less than 1 nanometer. 1 nanometer से less than होते हैं, and in colloids they are from 1 nanometer to 1000 nanometer, while in suspension they are greater than 1000 nanometer. Sorry, it's I think मैंने साइन से गलत लगा दिया. Less than, यहाँ पे greater than आएगा, ठीक है. तो ये पार्टिकल साइज है. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी हमारे पास ट्रू सोल्यूशन में वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल. colloids भी स्टेबल होती है एंड दे आर अनस्टेबल. एक बार हमने छोड़ दिया तो ये क्या कर जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. सेकेंड पार्ट, when a beam of light was passed the solution of substance A dissolved in water. देखो एक सोल्यूशन A है हमारे पास, हमने प्रिपेयर कर रखा है सब्सटेंस A का, ठीक है. उसमें से जब हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट पास कराई जाएगी, लेट मी मेक अ टॉर्च. ओके, दिस इज योर पर्टिकुलर टॉर्च. तो ये जो टॉर्च है जब यहाँ से इसमें से लाइट पास करवाई गई, then the path of light could be seen. What is this phenomenon called? तो ये phenomenon हमारा अपना Tyndall effect है. Effect, और ये nature of solution is simply a colloidal solution. It is very easy, right? Moving further. Now question number 11. What are the postulates and limitation of the Dalton's atomic theory? तो 3 मार्क का क्वेश्चन, हम पहले postulates लिख देंगे और फिर limitations. जो हमारे पास postulates होंगे उनमें हम लिख सकते हैं any of the 4 postulates. कि हमारे पास इन्होंने law of conservation of mass बता दिया था कि हमारे पास मतलब
इन्होंने जो लॉस दिए थे उन्हीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आज वाला डराइव हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाला कि हमारे पास जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लो हो गया। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, से फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन कर सकते हैं। हाउ? जैसे NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O बन सकता है। तो ये हमारे पास एक लॉ है कि atoms of two elements can combine in more than one ratio to produce more than one compound। बट ये जो हमने प्रीवियसली लॉ पढ़ा इसमें ये नहीं है कि मोर देन वन कंपाउंड नहीं बना सकता, बट वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। जस्ट नोटिस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। फर्दर हमारे पास जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो बोला था कि एटम इज indivisible, cannot be divided. But this was the drawback of the Dalton's atomic theory. This was the limitation of Dalton's atomic theory. But उनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये वाला क्वेश्चन भी इट्स वेरी इजी, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था उसके अकॉर्डिंग टू electrons revolved in quantized energy shells। quantized मतलब fixed energy levels। यहाँ पे n is equal to 1 होगा, azimuthal quantum number की वैल्यू, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे होगी 2, यहाँ पे होगी 3, राइट। तो ये हमारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं शेल्स की एनर्जी है, राइट। तो ये फिक्स होती है हर एक शेल के लिए। फर्दर इन्होंने बोला था जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ना तो वो एनर्जी को गेन करेंगे ना एनर्जी को लूज करेंगे, और जब भी ये हाई लोअर टू हायर जाएंगे तो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, और जब हायर टू लोअर जाएंगे तो ये एमिट करेंगे एनर्जी को, और जब वापस आएंगे तो उनकी वही स्टेट गेन हो जाएगी। Moving on to the question number 12. Differentiate between the prokaryotic and eukaryotic cell. Very easy. Prokaryotes में जो nucleus है, the main difference is about the nucleus, वो हमारे पास well defined नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S टाइप के, जबकि जो हमारे पास यूकैरियोटिक है वहां पे 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था ना, two types of ribosomes are there, 70S and 80S type of ribosomes, right। उसके बाद हम लिख सकते हैं about कि जो क्रोमोसोम होता है इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम होता है हमारे यूकैरियोट्स में। Sufficient points are there। Question 13. Why are the antibiotics not effective against the viral infection? 3 mark question again। देखो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं ऑफ बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देते हैं। बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक पाथवेज की ओन मेटाबॉलिक पाथवेज उसके पास प्रेजेंट होती है, जिनको वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ये एंटीबायोटिक। जैसे उनका कोई ए बैक्टीरिया हमारे पास एंटर कर लिया, वो सबसे पहले बनाएगा बी एंजाइम, उसके बाद जो मेन इफेक्टिव होगा वो है सी एंजाइम। ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करने वाला है एडवर्सली, तो ये बी एंजाइम नेसेसरी है इसके लिए। तो जैसे हमारे पास पेनिसिलिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक थी वो उसने ऐसे ही काम किया था, जो बी है दैट वाज सेल वॉल फॉर्मेशन फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल फॉर्मेशन था, तो सेल वॉल फॉर्मेशन को उसने ब्लॉक कर दिया था।
तो मतलब सी बना ही नहीं, अफेक्ट हो ही नहीं हमारी बॉडी, ऐसे ही हमारे पास एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। बट अगर मैं बात करूं वायरल की, वायरसेस की, तो उनकी तो मेटाबॉलिक मशीनरी, उनकी तो मेटाबॉलिक पाथवेज उनकी खुद की होती ही नहीं है, कैसे ब्लॉक करा जाए? तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक देम अगेंस्ट द वायरसेस। Question 14. What are the advantages of intercropping in crop rotation? We can write very easily. Intercropping मतलब देखो, जब हम यहाँ पे crops को ऐसे ग्रो करते हैं, जैसे ए क्रॉप, यहाँ पे फिर बी क्रॉप, ए क्रॉप, ए क्रॉप, ए क्रॉप, बी क्रॉप, बी क्रॉप, बी क्रॉप। यहाँ पे जो क्रॉप्स है उनमें हम इजीली देखो, बी को कोई और फर्टिलाइजर चाहिए, ए को कोई और फर्टिलाइजर चाहिए, तो इजी लगा सकते हैं ऐसे, इसमें चले गए, फिर इसमें कोई और फर्टिलाइजर लगाना था, ऐसे हमने फर्टिलाइजर्स को इजीली, पेस्टिसाइड्स को इजीली अप्लाई कर दिया। सेकेंड, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग इजी हो जाती है। बट मिक्स फार्मिंग में हमारे पास कैसा था? मिक्स फार्मिंग में तो ऐसा था, ए बी, कहीं ए कहीं बी, है ना, तो उसमें तो पेस्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग, फर्टिलाइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बट यहाँ पे तो ईजी है। फर्दर हम लिख सकते हैं कि जो है ये, अगर कोई पेस्ट है उसने अटैक कर दिया, तो इस रो पे वो अटैक कर देगा, बट ए तक तो वो नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ए को तो अटैक नहीं कर पाएगा, वो तो बी के लिए बना है, मतलब बाकी जो क्रॉप्स वो सेफ रह जाएंगे। थोड़ा सा जो पेस्ट हैं, डिजीजेस हैं, वो थोड़ा सा कम स्प्रेड होंगी, सॉइल इरोजन मिनिमाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जो फील्ड है उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक खाली छोड़ दिया, है ना। प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट एरिया इंक्रीज भी हो जाती है। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं? अलग अलग सीजन पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, जो पेस्ट अटैक है, पैथोजन अटैक है, वो मिनिमाइज हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंज्यूम नहीं होते हैं ना, और हायर रिटर्न्स होती है फार्मर्स की, क्योंकि साल में 2-3 क्रॉप्स वो उगा जाती हैं, और क्रॉप फेलियर जो है वो कुछ हद तक हमारे पास रिड्यूस हम देख सकते हैं होता है। क्वेश्चन 15 इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो हम और write the location of different types of meristematic tissue on what basis are they divided। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर चॉइस वाला करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास वो साइकिल है जिसमें 4 स्टेप्स हमको देखने को मिलता है। लेट्स राइट अबाउट दोज स्टेप्स, sorry I think 5 steps, 5 steps majorly। The first one is nitrogen fixation, पहले हम उसको फिक्स करेंगे। The second step is involved is our assimilation। I think 4 steps are only there, 4 steps only. Assimilation, then nitrification. Bad writing is coming now. Denitrification. ओके, तो हमारे पास 4 प्रोसेसेस, 4 स्टेप्स हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस स्टेप में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करा जाएगा इनटू द सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। 3 तरीके से हो सकता है ये, इधर बायोलॉजिकली, इधर इंडस्ट्रियली और एटमॉस्फेरिकली। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आ गया। उसके बाद एसिमिलेशन के बारे में लिखना है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये एसिमिलेशन नहीं, ये होता है अमोनिफिकेशन। एसिमिलेशन वैसे सेकेंड स्टेप हो जाता है जिसमें जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, बट इन योर स्टैंडर्ड द 4 स्टेप्स आर गिवन। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन, मेनली उसमें होता है एब्जॉर्प्शन, बट यहाँ पे सेकेंड स्टेप एनसीईआरटी में अमोनिफिकेशन दिया है, सो विल स्टडी दैट ओनली। तो अमोनिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास अमोनिफाई करा जाएगा जो हमारे पास ये कंपाउंड जो प्लांट के प्रोटीन्स बनाए उनको अमोनिफाई, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वापस, उनको फिर नाइट्रीफाई करा जाएगा,
फिर डीनाइट्रीफाई करा जाएगा। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास इनटू फाइनली जो एंड प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और उसको फिर हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको रिलीज कर देंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। और वाला टाइप की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स उनको बताना है। देखो हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं लोकेशन के बेसिस पे। Where is it located? On the basis of location, we classify it into three major categories. They are apical, lateral, and intercalary. ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्रेजेंट होता है एपेक्स रीजन पे, शूट टिप एंड रूट टिप। लेटरल मेरिस्टम लेटरल बड्स पे प्रेजेंट होता है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है स्टैक बिटवीन द टू टिश्यूज और लीफ बेस पे हमको देखने को मिलता है। Now we are completely done with section A, section B, section C. Congratulations, we have reached the section D now. So it contains the 5-marker questions. Starting up with the first question that says, what is the law of conservation of energy? Law of conservation of energy क्या बोलता है भाई, हमारे पास जो भी एनर्जी डेवलप होती है वो जब हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी always remains conserved. Okay. For the second point, what is mechanical energy? This was the thing which I was about to answer, but it is ours only. Potential energy plus what else? Tell fast. Kinetic energy. Okay. And show that total mechanical energy of a freely falling body remain same throughout its free fall. तो सेम कैसे रहेगी, हम एग्जाम्पल से इसको क्या करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। तो देखो हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर करा, एक बॉल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0 बिकॉज वेलोसिटी 0। वो ये अभी तो है हाइट h पे, बॉडी ऑफ मास m, यू नीड टू राइट बॉडी ऑफ मास m है, h उसकी हाइट है। अभी ये पोजीशन b पे जब पहुंची तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये हमारे पास कुछ x, उसने यहाँ से कुछ x डिस्टेंस कवर अप कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू mg कितना h माइनस x है ना, mg into h. I think this color is not visible. Let me choose another one. तो देखो potential energy here will be mgh, mass वही है, into g into अभी h क्या बन गया हमारे पास h minus x, कितना सॉरी कितना कवर कितना रिड्यूस हो गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस बचा है h minus x, ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे h minus x प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, देखो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना था mgh प्लस 0 मतलब mgh है ना, और यहाँ पे mgh मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिस वन प्लस हाफ m, वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा, मान लो v एक्वायर करना है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh माइनस x। यहाँ पे जो v है उसको हम लिख सकते हैं √2gh है ना, √2gh, तो इज इक्वल टू रूट हट जाएगा स्क्वायर से, अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया और रूट भी गया, यहाँ पे फिर रिजल्टेंट क्या आएगा 2gh, h क्या है हमारे पास x, x डिस्टेंस कवर करा है 2gh से मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ 2gx, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया mgx, तो mgx से यहाँ पे mgx कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में mgx था तो यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा
mgh, राइट। अगर हम यहाँ पे उस बॉल को लेके आते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखते तो वो तो जीरो, क्यों? क्योंकि उसकी जीरो हो गई। हमारे पास क्या जीरो होगी? उसकी जितनी भी हाइट थी वो जीरो होगी। बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो दैट हैज बिकम हाफ एम वी स्क्वायर था, तो अंडर रूट टू जी वही है। एच हमारे पास कवर अप कर लिया इसने, तो इसका स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, एम जी एच ही बच गया। तो एम जी एच प्लस जीरो गिविंग अस मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने नोटिस करा कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों पे एम जी एच हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दस इट इज कंजर्व। ये हमने डेमोन्स्ट्रेट करके एग्जाम्पल से। क्वेश्चन 17 यहाँ पे गिवन है कि बॉडी हमारे पास 2 kg मास की, जिसको हम बॉडी के लिए अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो देखो हमने कंसिडर कर लिया ये बॉडी, ये ऊपर हमने थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन टू पॉजिटिव, एनी डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। आई एम चूजिंग अपवर्ड पॉजिटिव। सबसे पहले साइन कन्वेंशन करना है ताकि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज इन द साइंस और क्वेश्चन की गड़बड़ ना कर दो। और नीचे हमारे पास इसको हम 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं। नीचे एक्ट कर रहा है ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। बट ये ऑपोजिट है, नेगेटिव में जा रहा है, तो 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमको बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 2 सेकेंड्स। पोटेंशियल एनर्जी का वी नो द फॉर्मूला एम जी एच, यहाँ पे एम गिवन है, जी गिवन है, एच हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। टाइम है 2 सेकेंड के बाद, है ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे विच विल बी मोर सुटेबल। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 20 है इनटू टाइम 2 प्लस हाफ ऑफ माइनस 10, टी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 माइनस 5 हो गया, माइनस 20, 40 माइनस 20 विल बी 20। तो s इक्वल टू 20 मीटर फॉर्मूले में पुट करते हैं। मास हमको पता है 2, जी हमको पता है माइनस 10, और इनटू जो so that is 20 meter. Okay. It would come out to be, you can solve this part and you will get the answer very fine. तो बी पार्ट पे जाते हैं कि मोमेंटम हमको फाइंड करना है। एक बॉडी है जिसका मास है 100 ग्राम्स। अभी देखो यहाँ पे ग्राम्स गिवन है, तो जस्ट फोकस ऑन द यूनिट्स, डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज यू विल मेक द मिस्टेक्स। हमको फाइंड करना मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल्स। हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता है, ऑफ कोर्स पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है 20 जूल्स इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर हमको फाइंड करना है अपॉन 2 इनटू द मास। तो मास हमको 100 ग्राम गिवन है, तो 0.1 तो जाएगा 0.2, 0.2 इंटू 24 अंडर रूट 4, ये मोमेंटम का स्क्वायर था। तो पी मोमेंटम इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मोमेंट हमारे पास आ गया। सी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। राम वाज ड्राइविंग अ कार 1500 kg moving at a constant velocity of 60 km per hour. Sham tries to stop the car. Calculate the work done by Sham to stop the car. तो देखो यहाँ पे फोर्स हमको हम निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत अच्छे से हमको पता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। देखो यहाँ पे मास हमको गिवन है 1500 kg इनटू एक्सेलरेशन हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं तो देखो हम सिंपली वर्क डन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पे फोर्स हमको पता है कितना है। देखो फोर्स को हम सेकेंड वेट, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे इनटू एस, है ना। ए एस की वैल्यू हम देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ए एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये हमारे पास बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो
यहाँ पे मास की वैल्यू हमको गिवन है 1500 kg, तो 1500 पुट कर देते हैं इनटू में v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 60 किलोमीटर पर आवर 3600, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार 60 इंटू 5 बाई इंटू 1000 अपॉन 3600 अब 5 बाई 18 यहाँ पे 2 9 33 10 upon 9 10 upon 3 right 10 upon 3 meter per second का whole square Sham tries to stop the car stop हो गया final velocity 0 तो 10 upon 9 का whole 10 upon 9 का whole square मतलब हम लिख सकते हैं 100 upon 81 into 1 upon ओके यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं I think we did a mistake in finding the velocity in meter per second. तो देखो यहाँ पे let's do that again. We can do this question by two methods. I'm telling the first method first of all. तो देखो जो श्याम है वो m into a into s है उसका वर्क डन राइट मास हमको पता है 1500 kg into v स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 into 5/18 पहले हम करेंगे into 60 into 5/18 अभी फर्दर हम करेंगे into अपॉन v स्क्वायर माइनस माइनस क्या है 0 फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है राइट अपॉन में करेंगे 2 दिस वाज द वैल्यू ऑफ as तो 1500 into हम लिख सकते हैं 6 ये 18 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 40 9 सा 3 3 सा और ये 10 तो इसको हम सॉल्व करेंगे we'll get 16.66 जिसको हम 16.67 लिख देंगे into 16.67 माइनस 0 को कोई मतलब ही नहीं है 1/2 ठीक है तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर moving on to the question number 18 let's try to solve it question says that define an atom atom क्या होता है the smallest unit of any substance the smallest unit of matter which cannot be divided further into any independent substance proton hai electron they are not they do not have any independent existence proton electron neutron के पास independent existence नहीं है जबकि atom के पास है तो the smallest unit of matter which has the independent existence is known as the atom अभी further हम लिख सकते हैं about the molecule molecule क्या होता है the group of similar or dissimilar atoms is a molecule what is the basic difference between atoms and molecules देखो molecules का हमेशा independent existence होगा atoms का may और may not जो noble gas के atoms है उनका ही होता है ओके बेसिक डिफरेंस वही हम लिख सकते हैं ओके एटम्स को हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स में ही डिवाइड कर सकते हैं C part 0.24 grams of oxygen and boron was found by analysis to contain this gram of boron and this gram of oxygen. Calculate the percentage composition by weight. Simple है अगर हमको ऑक्सीजन का पहले निकालना है तो 0.24 वो कंपाउंड था तो हम ऊपर लिख देंगे ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 अपॉन में टोटल कितना है 0.24 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालना है सो जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर 2 1 2 7 2 and 2 3
2 6 2 6 6 6 okay 0.6 so it would be 60%. तो बचा हुआ बोरॉन कितना आ जाएगा 40%, right? Total 100%, so 60% oxygen and 40% boron. Okay. Now, next question, question number 19. It says, what conclusions were drawn from Rutherford's alpha particle scattering experiment? So, as we know, its answer is very simple. The experiment था वो याद होना चाहिए. Conclusion we can make easily. जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हमारे पास बिना किसी डिफ्लेक्शन के नॉट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन पास हो गए थे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो गए थे. मतलब द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी है, बट कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो गए थे. मतलब क्या कि हमारे पास बहुत लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारा मास ऑफ एन एटम. और थर्ड पॉइंट हम सिंपल लिखेंगे कि हमारे पास जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है उन्होंने स्ट्रेट डिफ्लेक्शन दिखाया था. ऐसे गए तो ऐसे ही आ गए, है ना. तो स्ट्रेट डिफ्लेक्शन कुछ नहीं दिखाया तो मतलब कि हमारे पास बहुत कम स्पेस में हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे एटम का मास. एज सिंपल एज दैट. Question number 2, which says an ion X2 negative contains 10 electrons 8 न्यूट्रॉन. देखो अभी 2 नेगेटिव है. 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो गए हैं जितने उसके पास इनिशियल थे. 8 + 2 × 10 होता है, तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इट वुड बिकम 8 और 8 किसका होता है ऑक्सीजन का, राइट. एंड इट हैज 8 न्यूट्रॉन्स. और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर you would be remembering the atomic mass of oxygen, so that would be 18. 8 plus 8 will be 16. तो 8u 16u हमारे पास atomic mass, 8 हमारे पास atomic number, oxygen is the name of that particular element. Now question number 20. ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में डिफरेंस क्या है. तो पर्सनल हेल्थ हमारे पास वो चीज है जो हमारे पास खुद हम मेंटेन कर सकते हैं. जैसे हमारे पास प्रॉपर हाइजीन जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके हम अपनी पर्सनल हेल्थ मेंटेन. बट कम्युनिटी हेल्थ वो होती है कम्युनिटी की वजह से इफेक्ट होती है ना. जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है हमारे पास, पीस एंड हार्मनी नहीं, तो उनकी वजह से जो हेल्थ इफेक्ट होती है दैट पर्टिकुलर हेल्थ इज नोन एज कम्युनिटी हेल्थ. वाइल जो हम खुद से मेंटेन करते हैं हाइजीन मेंटेन करके बहुत सारे स्टेप्स लेके दैट इज आवर पर्सनल हेल्थ. Further, it talks about the acute diseases and the chronic diseases. Acute diseases वो diseases होती हैं जो short period of time के लिए last करती हैं. Chronic disease last for a longer period of time. Longer period of time and shorter period of time. Okay, one difference. Drastic effects इसमें नहीं देखे जाते, इसमें देखे जाते हैं. That you can mention. Examples लिख सकते हो. Okay. कॉमन कोल्ड एक्यूट हो जाएगा. ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास एलिफेंटियासिस क्रोनिक हो जाएगा. इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस वो जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं वाया द थिंग्स लाइक एयर, वाटर, फर्माइट, all these things, soil, ये सारी चीजों वेक्टर से स्प्रेड हो जाती है. while the non infectious they cannot spread via any of these things. You can give examples for them. Infectious में you can give the example of same common cold हम दे सकते हैं example, spread हो जाती है. AIDS you can give tetanus. Okay, there are so many examples for infectious. and non infectious के लिए भी high blood pressure है, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये नहीं हो पाते. साइंस और सिम्टम्स है अगला पार्ट हमारे पास. तो जो साइंस होते हैं दे आर subjective, sorry, signs are the objective evidences of a patient's health, of the patient's health, and the symptoms they are the subjective evidences of the patient's health. सब्जेक्टिव एविडेंसेस ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो है ये केवल हमारे पास डॉक्टर और पेशेंट दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट ये जो है सिम्टम्स ये केवल हमारे पास
पेशेंट ही ऑब्जर्व कर सकता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, यहाँ पे हेडेक है, स्टमक एक है, ठीक है, नोजिया है, बट यहाँ पे वॉमिटिंग है, रैशेस हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन गिव। Now, question number 21. What does an amoeba, how does an amoeba obtain its food? Explain with the help of diagram. तो ये बहुत easy question. Phagocytosis जो हमारे पास process होती है, ऐसे हमारे पास इस process की हेल्प से obtain करते, देखो जैसे हमारे पास जो अमीबा है कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मली, फिर ये क्या करेगा, फूड को देखते ही, ये हमारे पास फूड पार्टिकल है, मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग इट। तो ये हमारे पास अमीबा है, फिर फूड पार्टिकल को देखते ही क्या करेगा, अपने जो स्यूडोपोडिया है ना, उनको अपनी एक्सटेंशंस को दिखा देगा। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, फिर इनको ट्रैप कर लेगा, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक फूड वैक्यूल बना लेगा ऐसे करके, हाँ, और फिर ये अपनी डाइजेशन कर लेगा, प्रोसेस अंडरगो। ओके, तो दैट इज डाइजेशन इन, सॉरी, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और इनमें से ऑब्टेन करते हैं ऐसे फूड। हमको अगला बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो गोल्गी बॉडी इन सेल, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, पैकेजिंग नहीं होगी, कोई भी वेसिकल नहीं बनेगा। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हैपन, लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली सेल डाई हो जाएगा। कोई भी चीज हमारे पास सेल में नहीं है तो अल्टीमेटली सेल डाई ही होता है। You can mention the steps why it will die. Give reasons why lysosomes are known as suicidal bags of the cell. Suicidal bags हम उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं, द लाइसोसोम्स, उनमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। ऐसे एंजाइम्स क्या करें, ये जो एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, हमारे पास जो और सेल के कंपोनेंट्स है उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, मार देंगे, मतलब सॉरी, और सेल वॉर्न आउट सेल कंपोनेंट्स को, या फिर अगर कोई पैथोजन आ रहा है सेल में, अनवांटेड चीज आ रही है, वॉर्न आउट सेल और कैनल्स है, वेस्ट सेल का, उन सभी को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए सुसाइड, और इमरजेंसी के टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी के टाइम पे अपनी जो एंजाइम इनको रिलीज कर दे, सेल को डाइजेस्ट कर लेते, इसीलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ओके, this was all about the question paper. I hope you have assessed yourself, you have answered the question you can, and thank you. It was all about it.